everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have not watched the previous videos, you can click on the I button given above. And today we are going to study transition and inner transition elements. This is topic number 9 from Maharashtra State Board Syllabus Standard 12th. The topics to be covered in this chapter were this many. Out of this, we are done with few of the topics such as, so if you have missed those videos of the previous topics which are done, you can click on the I button above. So we are done with introduction, position in periodic table, electronic configuration, oxidation states of transition series, physical properties of first transition series, trends in atomic properties, compounds of magnesium and chromium, common properties of D block elements, extraction of metals. And today we are going to deal with inner transition, that is F block elements. So basically we are done with transition elements. Today we are going to deal with inner transition elements. Those are F block elements and the properties of F block elements. So these are the two topics. So let's begin with inner transition elements, that is F block elements, which are called as lanthanoids and actinoids. So these are the name for the F block elements. The first series is lanthanoid and second is actinoid, and they are even called as inner transition elements. So, can you tell why F block elements are called inner transition elements? D block elements are called as transition elements. Then why F block is called as inner transition elements? Because F block orbital lies much inside the D orbital. तो बेसिकली क्या होता है, F block orbital यहाँ पे है और उसके बाद D block का orbital होता है. तो F orbital क्या होता है, inside होता है और D orbital outside. तो F orbital जो है वो inside होने की वजह से इसे कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर का ऑर्बिटल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. एंड देयरफॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दोज ऑर्बिटल लाई इनसाइड द डी ऑर्बिटल. नेक्स्ट थिंग है, are there any similarity between transition and inner transition elements? Yes, there are. There are many similarities between the transition and inner transition element. One of that is they both have variable oxidation state. ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट दोनों भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं. So, elements whose f orbital get filled up by electron are called as f block elements. तो f block elements कौन से elements हैं जिनके f orbital इलेक्ट्रॉन से फिल हो जाते हैं, तो उसे कहेंगे f block element. These elements are placed separately in the bottom of the periodic table. तो आपने periodic table में periodic table के नीचे दो periods देखे होंगे जो सबसे अलग है, पीरियोडिक टेबल से अलग ही वो प्लेस किया गया है, और वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. दे आर सबसेट ऑफ सिक्स्थ एंड सेवेंथ पीरियड. तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एक्चुअली सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड के ही सबसेट है, तो कंटिन्यूटी है एक्चुअली सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड के ही बीच का. ठीक है. Since f orbitals lie much inside the d orbital, in relation to transition metal, f block elements are called as inner transition elements. क्योंकि f block और जो f block के elements हैं वो actually सबसेट हैं d block के elements के ही. ठीक है. तो f block के elements जो भी हैं वो सबसेट हैं d block के elements के, फर्स्ट थिंग. और सेकेंड f block जो f orbital होता है f block एलिमेंट में वो d ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है. तो आउटर में d ऑर्बिटल होता है और उसके अंदर होता है f ऑर्बिटल, और इसलिए इसे हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एज कंपेयर टू दी d block transition element. These elements have 1 to 14 electron in f orbital. So maximum capacity of f orbital is 1 to 14 electron. So कम से कम f orbital में 1 electron हो सकता है और maximum 14.
0 or 1 is the penultimate energy level and 2 electrons in the outermost orbital. तो F ब्लॉक एलिमेंट्स का penultimate energy level क्या होता है, 0 या फिर 1, और 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है outermost ऑर्बिटल में, सेम एज द डी ब्लॉक एलिमेंट. डी ब्लॉक में होता है 4s2, ऐसे लिखते हैं ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स. सेम होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए भी. The lanthanoids are characterized by gradual filling of 4f and actinides are characterized by 5f. तो लैंथोनाइड्स को और एक्टिनाइड्स को आप डिस्टिंग्विश कैसे कैसे करोगे, दोनों भी एफ ब्लॉक एलिमेंट ही है. एक 6th पीरियड का कंटिन्यूटी है, दैट इज लैंथेनॉइड, और एक 7th पीरियड का कंटिन्यूटी है, दैट इज एक्टिनॉइड. और लैंथेनॉइड में जो आपके एफ ऑर्बिटल है, कौन सा वाला फील्ड होता है, 4f, वाइल एक्टिनाइड्स में 5f. तो इस तरह से आप लैंथेनॉइड और एक्टिनाइड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि किस में इलेक्ट्रॉन फिल है. यदि 4f में है तो हो गया लैंथेनॉइड्स, और यदि 5f में है तो हो गया एक्टिनॉइड्स. There are 14 elements filling the f orbital in each series. तो एक्टिनॉइड और लैंथेनॉइड दोनों में 14 एलिमेंट्स ईच होते हैं. क्यों? क्योंकि एफ ऑर्बिटल का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 14 इलेक्ट्रॉन का, और इसलिए आप 1 से 14 तक फिल करोगे इलेक्ट्रॉन. 4f1, 4f2, 4f3. सिमिलरली फॉर 5f1, 5f2, 5f3 आप 14 तक जा सकते हो. इसलिए 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट है दोनों भी सीरीज में. The relative energies of the Nd and n-1f orbital are very similar and are sensitive to electronic configuration. तो यहाँ पे Nd and n-1f ऑर्बिटल का जो भी एनर्जी है ऑलमोस्ट सेम है एनर्जी लेवल, और वो वेरी सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. Next we move towards the second part of this video, that is properties of F block elements. F block elements कौन से common properties दिखाते हैं. So first is this F block elements have very similar property to D block elements. ठीक है, तो उनमें F block elements का properties D block elements से बहुत ही similar होता है. क्यों? क्योंकि वो लोग सबसेट ही हैं D block element के. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू एफ सब शेल्स ऑफ n-2 लेवल. तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाते हैं, एफ सब शेल ऑफ n-2 लेवल. दे आर प्लेस्ड बिटवीन n-1d एंड ns ब्लॉक एलिमेंट्स. तो एक्चुअली यदि आप लैंथेनॉइड की बात करोगे तो 4f लैंथेनॉइड लिखोगे, करेक्ट. तो उसके आगे क्या लिखना है आपको, n-1d, मतलब ये हो जाएगा 5d, और n हो जाएगा आपका 6s. तो जो भी लैंथेनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, 5d, 4f, 6s. क्यों? क्योंकि लैंथेनॉइड्स में होता है n-2f सब शेल. देखो n है आपका s, ns, करेक्ट. तो आपका n जो भी लोगे आप उससे 2 माइनस करोगे तो वो होगा आपका f सब शेल, और n-1 होगा आपका d सब शेल, दैट इज 5d. तो लैंथेनॉइड का क्या हो गया, 5d, 4f, 6s. तो इस तरह से होता है. तो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली कहाँ पे f में ऐड होते हैं, n-2 में, और n-2f n-1d और ns के बीच में प्रेजेंट होता है. Now lanthanoids begin with atomic number 57 and they end at 71. तो लैंथोनाइड कहाँ से बिगिन होता है, n-27, दैट इज ओके 57, ओके एटॉमिक नंबर 57, और वो एंड होते हैं 71 एटॉमिक नंबर पे. नाउ लैंथोनाइड्स आर टर्म्ड एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स. लैंथोनाइड को कौन सा एलिमेंट कहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स. बट वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट में अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं. अब रेयर अर्थ एलिमेंट सुन के बहुत स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि वो नेचर में बहुत कम पाए जाते हैं इसलिए उसे रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं, बट नहीं, वो उनका अबंडेंस बहुत अबंडेंट में वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं. तो उन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको एक्सट्रैक्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है. So, for example, thulium is found more abundance than silver. तो थुलियम जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है और वो सिल्वर से भी ज़्यादा पाया जाता है. ओके तो सिल्वर से भी ज़्यादा वो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है. इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि वो कम
प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में इसलिए रेयर अर्थ एलिमेंट है, नहीं। दे आर रेयर अर्थ एलिमेंट बिकॉज द डिफिकल्टी इन एक्सट्रैक्टिंग दैम इकोनॉमिकली इन प्योर स्टेट। तो एक्चुअली प्योर फॉर्म में उनको एक्सट्रैक्ट करना ओर में से उनके डिफ़िकल्ट है, और इसलिए उन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट कहा गया था, ना कि इसलिए क्योंकि वो अर्थ में कम प्रेजेंट है। ओके, सो प्योर फॉर्म अदर लैंथोनाइड्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एक्चुअली क्यों प्योर फॉर्म में नहीं हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, क्योंकि सारे लैंथोनाइड्स में ऑलमोस्ट सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है, और उसकी वजह से क्या होता है, उनके प्रॉपर्टीज सिमिलर होने की वजह से जब वो ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं तो आप एक को प्योरली नहीं निकाल पाते हैं, उसमें क्या हो जाता है, आपको मिक्सचर ऑफ लैंथोनाइड्स मिल जाता है, और वो प्योर एक्सट्रैक्ट नहीं होने की वजह से उसे कहा गया है रेयर अर्थ एलिमेंट। But now, due to newer separation techniques like ion exchange resin, okay, so exchange resin and separation of these elements have become easy and more economical, और इसलिए अब ये rare earth element नहीं रहे, but still the name is, they are called as rare earth element. Now these metals are soft with moderate densities of about 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, और उनकी डेंसिटी होती है 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट that is nearly 1000 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट that is nearly 3000 डिग्री सेल्सियस। तो इनके पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। Similar to group 1 and 2, lanthanoids in the metallic state are very reactive and resemble alkali and alkaline earth metals। मतलब वो S block elements को रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्टिव नेचर में। तो लैंथेनॉइड्स एक्चुअली बहुत रिएक्टिव होते हैं, दे आर रिएक्टिव एज कंपेयर टू दी एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनके आउटर शेल में एक या दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक और दो इलेक्ट्रॉन देना बहुत इजी है, इसलिए वो कभी भी एयर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। तो सोडियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, उसको आप बाहर रखोगे, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, अल्कली मेटल्स, तो वो एयर के साथ तुरंत रिएक्ट करके आग पकड़ लेते हैं, इतने रिएक्टिव होते हैं। तो सिमिलर टू देम अल्कली मेटल्स, दैट इज योर लैंथोनॉइड्स, सिमिलर टू द अल्कली मेटल्स योर लैंथोनॉइड्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी उतने ही रिएक्टिव हैं, ठीक है, एंड दे आर मोर रिएक्टिव देन द ट्रांजिशन मेटल। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स रिएक्टिव होते हैं। दे रिएक्ट विद वाटर टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो जब भी आप लैंथोनॉइड एलिमेंट को या एफ ब्लॉक एलिमेंट को वाटर से इंटरैक्ट करवाओगे तो तुरंत वो बन जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। The common oxidation state of lanthanoid is +3, and the +2 oxidation state is also important. तो lanthanoids नेचर में ज़्यादातर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही पाए जाते हैं, बट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको कभी कभी देखने को मिलेगा। They all form stable oxides of type M2O3 where M is the metal। तो F block elements कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, M2O3, कोई भी M, जो कोई भी इसमें से F ब्लॉक एलिमेंट्स हो सकते हैं, लैंथेनाइड हो सकता है, सीरियम हो सकता है, ठीक है, यूरोपियम हो सकता है, कोई भी मेटल M2O3 बनाता है ज़्यादातर। Now EU2 plus and Bi2 plus are the most stable deposit metal ions। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल डिपॉजिट मेटल आयंस कौन सा है, EU2 प्लस एंड Bi2 प्लस। तो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भले ही लैंथेनाइड्स का होगा +3, बट आप देख सकते हो EU और Bi2 प्लस में ही ज़्यादा पाए जाते हैं। Higher oxidation states are unusual for lanthanoids with the only exception of cerium। एक्चुअली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम दिखता है ब्लॉक एलिमेंट्स में, बट वहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो है सीरियम, जो दिखाता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो स्टेबल है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ये सीरियम स्टेबल है। तो ये इंपॉर्टेंट MCQ के लिए आता है कि विच ऑफ द मेटल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल, दैट इज EU2 प्लस एंड Bi2 प्लस, and which of the F block element is more stable in higher oxidation state, that is cerium, Ce, at +4 oxidation state।
The energy required to break up the metal lattice is heat of atomization. So what is heat of atomization? The energy required to break up the metal lattice. Okay, so that is called as heat of atomization. Now lanthanoids have lower heat of atomization than transition metals. तो एक्चुअली ट्रांजिशन मेटल्स का यदि आपको मेटल लैटाइस ब्रेक करना है तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा. बट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के, एफ ब्लॉक मेटल्स के, यदि आपको मेटल लैटाइस ब्रेक करना है तो कम एनर्जी में भी हो जाता है. दैट इज हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट इज लेस देन दैट ऑफ ट्रांजिशन metals. Now why this is? This is because with d electrons, transition metals are much harder and require high heat of atomization. ये क्यों है? क्योंकि d ब्लॉक एलिमेंट्स में या ट्रांजिशन मेटल्स में d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये d इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल्स को ज़्यादा हार्ड बना देते हैं और इसलिए उनका हीट ऑफ एटोमाइजेशन बढ़ जाता है जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में नहीं होते. Europium and ytterbium have lowest enthalpies of vaporization and largest atomic radii of lanthanides resemble barium. ठीक है, तो आपको एक्सेप्शंस याद रखना है. यूरोपियम दैट इज EU एंड इट्रियम दैट इज YB, उनमें सबसे लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होता है. ठीक है, दोनों में सबसे लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है और लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई लैंथेनॉइड्स में होता है बेरियम का. बेरियम का सबसे लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई है. नाउ दिस टू एलिमेंट्स रिजेंबल अल्कली अर्थ मेटल्स. दे डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव ब्लू कंडक्टिंग सोल्यूशन. एक्चुअली मैं अभी अल्कली अर्थ मेटल के बारे में पहले बताती हूँ. अल्कली अर्थ मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक या दो ही है, तो वो लोग क्या होता है, जब आप अमोनिया में उन्हें डिसॉल्व करोगे तो वो अपने इलेक्ट्रॉन अमोनिया को दे देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन अमोनिया में फ्री प्रेजेंट होने की वजह से अमोनिया का सोल्यूशन का कलर हो जाता है ब्लू. तो आप बहुत बार देखोगे जब भी आप एस ब्लॉक एलिमेंट को अमोनिया में डिसॉल्व कर रहे हो, अमोनिया का सोल्यूशन का कलर हो गया ब्लू. दैट ब्लू कलर इज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन. ठीक है, वो सेम थिंग होता है इसके साथ भी. तो जब भी आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को अमोनिया में डिसॉल्व करोगे तो अमोनिया का सोल्यूशन का कलर हो जाएगा ब्लू, मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन अमोनिया को डोनेट कर रहे हैं. देयर आयोनिक रेडियाई डिक्रीज फ्रॉम 117 pm टू lanthanum to 100 pm फॉर लुथेनियम. तो क्या होता है, आयोनिक रेडिया क्या होता है, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे तो आयोनिक रेडिया क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि लैंथेनम इज टू द लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, लुथेनियम टू द राइट. तो लेफ्ट से जब राइट की तरफ मूव करोगे तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियाई है लैंथेनम का 117 pm, वाइल लुथेनियम का 100 pm. Now this is because f orbital do not shield the outermost 5s and 5p electrons effectively, leading to increase in effective nuclear charge and decrease in ionic radii. तो जब भी ionic radii डिक्रीज होता है उसका एक ही रीज़न है कि इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. तो सपोज आप अपना लैंथेनम का न्यूक्लियस है ये और ये है आपका लुथेनियम का न्यूक्लियस. ठीक है, तो लैंथेनम के न्यूक्लियस में जो एफ ब्लॉक का एफ ऑर्बिटल है वो इधर है और लुथेनियम में भी इधर है. ठीक है, अब उसमें आते हैं 5s एंड 5p ऑर्बिटल्स. अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं वो शील्डिंग कम कर रहा है, क्योंकि एफ ब्लॉक के जो ऑर्बिटल्स हैं वो शील्डिंग करने में उतने सक्षम नहीं हैं, तो उतना अच्छे से वो शील्डिंग नहीं कर पाते. तो जैसे जैसे एफ ब्लॉक ऑर्बिटल में आपके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे वो शील्डिंग कम करेगा. ठीक है, शील्डिंग कम करेगा तो न्यूक्लियस का इफेक्ट आपके 5s और 5p पे सबसे ज़्यादा होगा. तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ होगा, ऑफ कोर्स इसमें, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एफ ऑर्बिटल में और वो शील्डिंग कम कर रहा है, शील्डिंग डिक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से, और न्यूक्लियस का इफेक्ट वो आउटर ऑर्बिटल पे ज़्यादा हो रहा है और उसकी वजह से क्या होगा, आउटर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के और करीब आ जाएंगे और एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो जाएगा. बट लैंथेनम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक्चुअली लैंथेनम में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है एफ ऑर्बिटल में और उसकी वजह से यहाँ पे शील्डिंग ज़्यादा रहता है. शील्डिंग ज़्यादा होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है और वो आउटर ऑर्बिटल को उतना अफेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए एटॉमिक या आयोनिक रेडियाई ज़्यादा होता है.
ठीक है, तो ये रीज़न है कि लैंथेनम का साइज बड़ा है और लुथेनियम का साइज छोटा. Such large ions have higher coordination number that varies from 6 to 9, 10 and up to 12 in some cases. तो आपने देखा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला वीडियो, तो उसमें आपने पढ़ा है कि आपके जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो 4 लिगैंड के साथ कम मॉलिक्यूल बना सकते हैं या फिर 6 के साथ. यही तो हमने पढ़ा है. टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर मतलब आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था और ऑक्टाहेड्रल मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था. बट ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है लैंथेनम है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज़्यादा होता है. दैट इज 6, 9, 10, 12. ये भी देखने को मिलता है इतना हाई कोऑर्डिनेशन नंबर. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रेटेड लैंथेनम आयन is a non-hydrate that is LaH2O9 3+. तो यहाँ पे देख सकते हो आप इस लैंथेनम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 9. तो यहाँ पे उसने 9 लिगैंड के साथ बॉन्ड बनाया है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाया है. तो LaH2O9 3+. Now, all lanthanoids from hydroxides of a general formula LNOH3, that Ln represents any element from lanthanoid series. तो LNOH3 ये वाला जब भी टर्म देखोगे तो इसका मीनिंग ये नहीं है सिर्फ लैंथेनम ही प्रेजेंट है. ठीक है, ये Ln रिप्रेजेंट करता है कोई भी एलिमेंट लैंथेनॉइड सीरीज से. मतलब जो फर्स्ट वाला सीरीज है एफ ब्लॉक का उससे कोई भी एलिमेंट ये हाइड्रोक्साइड बना सकता है. तो ज़्यादातर लैंथेनॉइड्स के हाइड्रोक्साइड LnOH3 के फॉर्म में ही पाए जाते हैं. एंड दीज आर आयोनिक एंड बेसिक इन नेचर. और इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं एक्चुअली हाइड्रोक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक. ये तो आपको पता होगा कि हाइड्रोक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर एंड दे आर इवन आयोनिक. Now, since the ionic size decreases from La3+ to Lu3+, ये तो आपको रीज़न पता है क्यों. क्योंकि जैसे जैसे एफ ब्लॉक एलिमेंट एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है शील्डिंग कम होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है. तो सेम रीज़न इसके लिए भी है. इसके वजह से La3+ का साइज बड़ा होता है और Lu3+ का साइज छोटा होता है. सो द बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेस. जैसे साइज छोटा होता है बेसिसिटी भी कम होते जाता है. सो that compare that LaOH3 is the strongest base while LuO3 is the weakest base. तो ये क्वेश्चन MCQ के लिए या 1 लाइन के लिए आ सकता है. Which one of the following is the strongest base? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है LaOH थ्राइस. क्योंकि La3+ का साइज बड़ा है और इसलिए बेसिसिटी ज़्यादा है. बट Lu3+ का साइज छोटा है इसलिए बेसिसिटी कम है. दैट इज LuOH3 इज द वीकेस्ट बेस. Now lanthanoids reacts with nitrogen. They reacts with halogen to give nitrides and halides. तो lanthanoids किसके साथ रिएक्ट होते हैं नाइट्रोजन के साथ या हैलोजेंस के साथ. नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके देते हैं नाइट्राइड्स और हैलोजन के साथ रिएक्ट करके देते हैं हालाइड्स. फॉर फॉर्मूला LNN that is the nitrides and LNX3 that is halides. So lanthanoids form LNN that is nitrides and LNX3 that is halides. Now while doing so lanthanoids loses their outermost 3 electron. वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं and they form their most stable oxidation state that is +3. तो हमने वीडियो में देखा है कि लैंथेनाइड्स का सबसे कॉमन और सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है +3. और वो लैंथेनाइड्स जब भी हैलाइड्स और नाइट्राइड्स फॉर्म करते हैं वो अपना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन करते हैं. When lanthanides are heated at elevated temperature with carbon, the carbides with general formula LnC2 are obtained. तो lanthanides को जब कार्बन के साथ ट्रीट करोगे तो कार्बाइड्स मिलेगा आपको जो उसका फॉर्मूला है LnC2. तो हमने देखा lanthanides क्या क्या फॉर्म कर सकते हैं नाइट्राइड्स LNN, हालाइड्स LNX3, कार्बाइड्स LnC2. In +3 oxidation state, many of the lanthanides are colored, mostly green, पिंक एंड येलो. तो जब भी आप लैंथेनाइड्स को देखोगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ज़्यादातर कलर्ड होते हैं. ज़्यादातर कौन से कलर में होंगे ग्रीन,
pink and yellow. So as compared to D block elements, lanthanides are also colored compound. और यहाँ पे रीजन है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अमॉन्ग द एफ ऑर्बिटल्स. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर्ड क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ डी डी ट्रांजिशन. करेक्ट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी डी ट्रांजिशन दिखा पाते हैं. और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कलर्ड क्यों होते हैं? ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन एफ ऑर्बिटल. तो एफ ऑर्बिटल एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स है स्टडी करने में, उसमें 7 सब ऑर्बिटल्स होते हैं और वो कॉम्प्लेक्स है स्टडी करने में. पर याद रखना है कि एफ एफ ट्रांजिशन के वजह से वो लैंथोनाइड्स या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कलर्ड होते हैं, और वो कलर जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं. ठीक है, डी ब्लॉक के लिए ऐसा नहीं है, डी ब्लॉक में तो हमेशा कलर्ड होते हैं, बट यहाँ पे हमेशा मतलब जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. बट एफ ब्लॉक में ज़्यादातर वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कलर्ड होंगे, और ज़्यादातर वो 3 कलर्स ही दिखाते हैं, ग्रीन, पिंक एंड येलो. Like transition metals, the electronic spectra of lanthanoids, however, do not get affected by different ligands. ट्रांजिशन मेटल में क्या होता है, जैसे जैसे लिगेंड आप चेंज करोगे आपका कलर भी चेंज होगा कॉम्प्लेक्स का, और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी. बट लैंथोनाइड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि लैंथोनाइड का ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा या कलर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे बेस्ड होता है, ना कि लिगेंड पे. इसलिए लिगेंड चेंज करने से ज़्यादा कोई अफेक्ट नहीं पड़ता. So that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you liked my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. And before departing, in looking for people to hire, look for 3 qualities: integrity, intelligence, and energy. And if they don't have the first, the other two will kill you. That's all for today. Thank you. Stay tuned.